آج ہم لوگ خلفائے راشدین میں سے دو کے بارے میں پڑھیں گے. ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، ان کی حالات زندگی پر مختصر روشنی ڈالیے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب تک ہم لوگ پڑھ رہے تھے. آج ہم لوگ پہلے خلیفہ کے بارے میں کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے. حضرت ابو بکر حضور کی پیدائش کے اور 2 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال چھوٹے تھے؟ 2 سال چھوٹے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کے 2 سال بعد پیدا ہوئے تھے. آپ کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنو تمیم سے تھا. یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے کس شاخ سے تھے؟ قبیلہ قریش کے کس شاخ سے تھے؟ بنو تمیم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کس شاخ سے تھے؟ بنو ہاشم سے. بنو ہاشم. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس شاخ سے تھے؟ بنو ہاشم. ابو بکر کس شاخ سے تھے؟ بنو تمیم. زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہلیت میں نام کیا تھا؟ عبد الکعبہ. عبد الکعبہ، کعبہ کا بندہ. چونکہ یہ نام غلط تھا اس وجہ سے، لیکن قبول اسلام کے بعد حضور نے آپ کا نام ابو بکر رکھ دیا. چونکہ یہ نام غلط تھا، کیونکہ انسان اللہ کا بندہ ہے نا، کعبہ کا بندہ تو ہو نہیں سکتا. اس وجہ سے اللہ کے رسول نے اس نام کو بدل کر کے کیا کر دیا؟ ابو بکر نہیں کیا بلکہ عبداللہ کر دیا. ان کا اصل نام عبداللہ ہے، لیکن ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر ہے. آپ بہت نیک اور ملنسار طبیعت کے مالک تھے. زمانہ جاہلیت سے ہی شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. یعنی جب پوری دنیا میں شراب پی جاتی تھی، پوری سوسائٹی کے لوگ شراب مزے سے پیتے تھے، اس وقت بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، بلکہ شراب سے بہت دور رہتے تھے. ٹھیک ہے. ابو بکر کے اندر بہت سی ایسی خصوصیات پائی جاتی تھیں جن کی وجہ سے آپ کو عام شہرت ہوئی. یعنی کسی بھی انسان کو مشہور ہونے کے لیے اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں. جب تک کچھ خوبیاں نہ ہوں وہ انسان مشہور نہیں ہو سکتا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت ساری ایسی خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے یہ شہرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی. ابو بکر وہ پہلے شخص ہیں جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے. مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لائے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر میں پوچھوں عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کون لائے تھے تو کیا بتا سکتے ہو آپ لوگ؟ حضرت خدیجہ. بچوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا تھا؟ حضرت علی. اور غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان کون ہوئے تھے؟ نہ، حضرت بلال نہیں. حضرت بلال تو بعد میں اسلام لائے ہیں. حضرت زید بن حارثہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان میں سے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے زمانہ جاہلیت سے ہی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا چوں چرا کیے ہوئے آپ کی بات کو مان لی، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے انسان ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، نیک انسان ہیں. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھی. انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے پہلے بھی نماز پڑھی تھی. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. یعنی کبھی بھی آپ کے ساتھ، کبھی بھی آپ کے پاس سے آپ کی اجازت کے بغیر نہیں گئے. آپ نے اپنے خاندان یا گھر والوں کو چھوڑ کر حضور کے ساتھ ہجرت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پہ نکلے، مکہ سے مدینہ گئے، تو ہجرت میں آپ کے ساتھ کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے. غار حرا میں ساتھ رہے. تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. حضرت ابو بکر نہایت ہی سخی انسان تھے. چنانچہ حضور نے فرمایا جتنا مجھے ابو بکر کے مال سے نفع پہنچا ہے کسی اور کے مال سے نہیں پہنچا. سخی مطلب فیاض، یعنی اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے. عالم یہ تھا
कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सब लोग माल इकट्ठा करो या चंदा करो। तो उस मौके से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में गए और पूरा माल लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाकर रख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर क्या तुमने अपने घर में कुछ छोड़ा है? उन्होंने कहा कि हाँ, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आया हूँ। हिजरत करके जा रहे थे, उस मौके से इनके अब्बू नाबीना थे। उन्होंने कहा कि कुछ पैसा वैसा सब मत ले जाना, कुछ घर वालों के खर्चे के लिए भी छोड़ देना। उस मौके से अबू बकर ने क्या किया, कुछ कंकर जमा कर लिया। कंकर जमा करने के बाद क्या कहा, अपने अब्बू का हाथ पकड़ा और कहा कि देखिए आपके लिए कितना सारा पैसा छोड़ कर जा रहा हूँ। तो ये था इनकी सखावत, ये थी, और ये था इस्लाम के लिए इनकी मोहब्बत। यही वजह है कि अबू बकर बने और सिद्दीक कहलाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सातों आसमानों से घूम करके, जन्नत जहन्नम से घूम करके मेराज से वापस आए, तो सुबह मक्का के लोगों को बयान किया और कहा कि मैं रात ही रात में जन्नत गया, जहन्नम गया, सातों आसमानों को देख करके आया। कहने लगे कि अरे ये पगला गया है, एक ही रात में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इतनी, जो कि महीनों 2 महीना में, उस वक्त हवाई जहाज़ तो था नहीं, तो जो चीज़ महीना 2 महीना बल्कि सालों लग जाते हैं इंसान को सफ़र करने में, ये एक ही रात में कैसे चला आया। और आज भी सातों आसमानों को घूमने का कोई वो नहीं ईजाद कर, इंस्ट्रूमेंट या इस तरह से कोई सवारी नहीं इस्तेमाल वो ईजाद की जा सकी है। तो उस ज़माने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे, किसी ने इनका यानी आपकी बात को माना ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले किसने बात मानी? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर मोहम्मद कह रहे हैं तो इनकी बात सही होगी। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैं अबू बकर को किसी मौके पर मात नहीं दे सका, हर बार माल खर्च करने में वही जीत जाते थे। एक बार वहीं ग़ज़वा तबूक के मौके पर अबू बकर अपने घर का पूरा माल लेकर के आए, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का आधा माल लेकर के आए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा था कि आज नेकी के काम में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या करूँगा, पछाड़ दूंगा, मैं हरा दूंगा। लेकिन जब वहाँ गए तो पूरा लेकर के आ गए थे अपने घर का माल, और ये आधा लेकर के आए थे, यहाँ भी हार गए। सन 11 हिजरी में अबू बकर को हुजूर का जानशी मुंतखब किया गया, यानी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, उस मौके से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशी मुतय्यन किया गया। हालांकि आप खलीफा नहीं बनना चाहते थे, आप खलीफा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन कसरत राय की वजह से आपको खिलाफत तस्लीम करनी पड़ी। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने बहुत इसरार किया, जिसकी वजह से आपको खलीफा बनना पड़ा। उस वक्त आपने हुकूमत की बागडोर संभाली। उस वक्त बहुत से फितनों ने जन्म लिया। किसी जगह किसी शख्स ने अपनी नबूवत का दावा कर दिया, और कहीं के लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, और कोई मुर्तद हो गया। हुजूर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस खुश उसलूबी से इन तमाम फितना अंगेजियों को ख़त्म किया, उससे ये बात ज़ाहिर होती है कि हुजूर के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत के असल हकदार थे। जिस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, उस वक्त कई फितने जन्म ले चुके थे। उन फितनों में एक ये था कि अल्लाह के रसूल की वफ़ात हुई थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने हमें अपना जानशी बना दिया है, उनके बाद हम नबी हैं। किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में हम ज़कात देते थे, अब ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़कात देने से मना कर दिया। किसी ने कुछ लोग इस्लाम से फिर गए कि अब अल्लाह के रसूल ही ज़िंदा नहीं रहे, तो अब हमें मुसलमान होने की क्या ज़रूरत। इसी तरह से एक उसामा बिन ज़ैद के लश्कर का भी मसला था। तो ये बड़े बड़े 4 मसाइल थे, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम मसाइल का हिम्मत के साथ सामना किया और तमाम मसाइल से निकल करके आए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जहाँ एक तरफ मुर्तद्दीन को ख़त्म करके अमन सुकून कायम किया, वहीं दूसरी तरफ आपने तमाम झूठे नबियों को सज़ा दी। अबू बकर का एक और अहम कारनामा कुरान शरीफ की जमा व तदवीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये कुरान इस तरह से नहीं लिखा हुआ था, बल्कि यह मुख्तलिफ़ चमड़ों के टुकड़ों पर, खजूर के पत्तों पर, या इसी तरह से खजूर के खालों पर, या पत्थरों पर, बड़े बड़े पत्थरों पर
लिखा हुआ था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि लोग मरते जा रहे हैं, यानी हाफिज़ लोग मरते जा रहे हैं और सब मरते जा रहे हैं, तो उनके सीनों में ये कुरान भी ख़त्म हो जाएगा। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बार बार कहने की वजह से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको एक पास जमा करवाया। इससे पहले कुरान पत्थर की ठेकरियों, कागज़ के टुकड़ों, चमड़े वगैरह पर तहरीर किया जाता था। जंगलों में कारी सहाबा की शहादतों के खौफ से हज़रत उमर ने आपको इस तरफ तवज्जो दिलाई और बहुत इसरार किया। तब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी जमा व तदवीन का हुक्म दिया। पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मना किया करते थे, लेकिन चूंकि बार बार अबू उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते रहे, इसकी वजह से वो मान गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक तरफ तो खाना जंगी ख़त्म करके मुकम्मल तौर पर अमन सुकून कायम किया गया, नीज़ बैरूनी हमलों का आगाज़ भी हुआ। सबसे पहले रूम और ईरान पर हमले हुए। हालांकि अबू बकर के दौर में ये इलाके मुकम्मल तौर पर फतह नहीं हुए थे, लेकिन उसमें बाज़ इलाक़ों पर फतह हासिल हो चुकी थी। इसी दौरान में जमादी सानी के महीने में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तपदक की बीमारी में मुब्तला हुए, और जब आपको यकीन हो गया कि अब मेरे जाने का वक्त है, तो आपने बाज़ सहाबा से अगले खलीफा के बारे में मशवरा किया, और सबसे मशवरा करने के बाद उमर इब्न ख़त्ताब को अपना जानशी नामज़द किया। 23 जमादी सानी सन 13 हिजरी बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब आपका इंतकाल हुआ। इंतकाल कब हुआ? 11 में बादशाह बने या खलीफा बने, और इंतकाल सन 13 हिजरी में हुआ, और ऐशा से कबल ही आप दफन किए गए। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के दूसरे पहले खलीफा थे, उनकी कहानी हम लोगों ने पढ़ी। अब उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में हमने जाना। अब हम लोग कल इंशाअल्लाह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़ेंगे, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।